All right. So till yesterday, we have reached up to the pedigree analysis as we have discussed. Right. So pedigree analysis is a tool which is used to study the hierarchy of genetical disorder and some other uh, genetic information if we want to compare generation by generation. So not only for mean of finding out the root cause of only disease, but also all or any kind of genetical information can be compared when you analyze the pedigree. The symbols which are getting used into pedigree that we have discussed yesterday, right? So that's the same slide we have lastly studied into the previous lecture. So let us now move forward that how this pedigree analysis can be useful for you. So number one, either you are studying the pedigree which is prepared by someone else, or you are presenting the pedigree to someone, so you are preparing them, right? So these are the two way we are supposed to learn how to study the pedigree. Say for example, somebody else have prepared the pedigree, right, and we are studying them. So pedigree analysis helping us to understand whether a trait is either dominant or recessive. Fine. Okay. Here they have mentioned only one phenomena. There are two phenomena which are required for you to understand while you are studying the pedigree. Right. So let me conclude both of them here with the slide. Okay. So with reference to the pedigree analysis, what we are supposed to analyze is, number one, whether trait is dominant or recessive, right? Either a trait would be dominant, affecting trait, what I mean, or it could be recessive. Okay. Second thing what we are supposed to know with this reference is whether the chromosome type on which the gene is located. So there are two types of the chromosome that we know. Chromosome number or type number 1, that is the autosome, or you have the other option, that is allosome or sex chromosome. So either the gene would locate on autosome or the gene would locate on the sex chromosome or allosome. So आपको पेडिग्री देख के प्रिडिक्ट करना है कि वो ऑटोसोमल है या सेक्स लिंक्ड है. सो हमें ये दो चीज फाइंड आउट करनी है व्हाइल लुक इट इनटू द पेडिग्री. तो यहां पर दो एग्जांपल ऐसे दिए गए हैं पेडिग्री के. फाइन, दोनों आपकी बुक में से ही मैंने कॉपी करके यहां पे रखे हैं. सो यू कैन फाइंड देम इनटू योर बुक्स. ये ऊपर वाली जो है दैट इज विथ रेफरेंस टू मायोटोनिक डिस्ट्रोफी इज अ नेम ऑफ अ जेनेटिकल डिसऑर्डर. एंड ये नीचे वाली पेडिग्री है दैट बिलोंग्स टू सिकल सेल एनीमिया.
फाइन। अब पेडिग्री में मैंने जैसे बोला, देर आर टू कंपोनेंट्स व्हाट यू आर सपोज टू एनालाइज। नंबर वन, वेदर दे आर डोमिनेंट और दे आर रिसेसिव, राइट। तो यहां पे आप देखेंगे दिस इज डोमिनेंट, दिस इज रिसेसिव। तो एक यहां पर डोमिनेंट वाला एग्जाम्पल आपके सामने रखा है और एक जो है वो रिसेसिव वाला एग्जाम्पल जो है वो आपके सामने रखा है, राइट। सो ये है डोमिनेंट वाला और ये है रिसेसिव वाला। ओके, अब है पॉइंट नंबर 2, राइट। वेदर द जीन इज लोकेटेड ऑन ऑटोसोम और सेक्स क्रोमोसोम। तो यहां पर दोनों के दोनों ऑटोसोम ही है। इफ यू सी हियर, इट इज ऑटोसोमल डोमिनेंट, इट इज ऑटोसोमल रिसेसिव। तो ये दोनों के दोनों जो एबनॉर्मालिटी क्रिएट करने वाले जीन्स है वो ऑटोसोम के ऊपर सिचुएटेड है, ऐसा आपको अज्यूम करना है नाउ। सो फर्स्ट वन इज द पेडिग्री एनालिसिस ऑफ ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट एंड एग्जाम्पल इज मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। नीचे वाला है पेडिग्री एनालिसिस ऑफ autosomal recessive trait and the example is sickle cell anemia, right? Okay, अब आपको डिसाइड कैसे करना है? कोई भी पेडिग्री को अगर आप देखते हो तो हाउ वुड यू कंक्लूड कि वो डोमिनेंट है या तो रिसेसिव है? करना तो आपको है, मैं तो आपको अनजान सी एक पेडिग्री दे दूंगा। तो आपको डिसाइड करना है कि डोमिनेंट कौन सा है, रिसेसिव कौन सा है। तो उसके शॉर्टकट्स में यहां पे आपको लिखवा देता हूं। डोमिनेंट है वो कैसे डिसाइड करोगे आप, राइट। तो सबसे पहले स्टार्ट में डोमिनेंट वाले से करता हूं। यहां पर आप पेडिग्री को जब एनालाइज करोगे तो पेडिग्री में अफेक्टेड इंडिविजुअल्स, उसका मतलब क्या होगा? जिसको एबनॉर्मालिटी है उसको अफेक्टेड इंडिविजुअल्स बोलते हैं, राइट। तो विथ रेफरेंस टू अफेक्टेड इंडिविजुअल जब आप स्टडी करोगे, हर एक जनरेशन में अफेक्टेड इंडिविजुअल्स अगर आपको मिलते हैं, हर एक जनरेशन में अगर आपको अफेक्टेड इंडिविजुअल्स मिलते हैं, बीच में कहीं पर भी खाना खाली नहीं है, राइट। पहली जनरेशन में भी कोई ना कोई अफेक्टेड है, दूसरी जनरेशन में भी कोई ना कोई अफेक्टेड है, तीसरी जनरेशन में भी कोई ना कोई अफेक्टेड है, तो समझ लेना वो डोमिनेंट कैरेक्टर के बारे में बात करी है, राइट। सो नो स्किपिंग ऑफ जनरेशन मीन्स ऑल जनरेशन हैव अफेक्टेड इंडिविजुअल्स, तो वो डोमिनेंट है, राइट। रिसेसिव, इट स्किप्स one or more generations, एक या एक से ज्यादा जनरेशन स्किप कर सकते हो, राइट। तो वो रिसेसिव इंडिविजुअल्स है। आपको सिंपल सा एग्जाम्पल जो आपने समझा है, आपने जाना है, आपने माना है, उस एग्जाम्पल्स के रेफरेंस से मैंने इसको उठा के रखा है और मैं उसको आपको समझाना चाहूंगा डेफिनेटली। क्या एग्जाम्पल है? आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस जो आपने सीखे हैं वो याद होंगे शायद। कैपिटल टी टॉल प्लांट है, स्मॉल टी ड्वार्फ प्लांट है। F1 जनरेशन कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल प्लांट है, यस और नो? ओके, अब F2 के बारे में बात करेंगे। आइदर कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों टॉल प्लांट है, एंड स्मॉल टी रिसेसिव प्लांट है। याद आ गया? ओके, तो स्किप किसने किया है?
टॉलनेस ने किया है जनरेशन या ड्वार्फनेस ने किया है? टॉलनेस स्किप हुआ है कहां पर? F1 में भी टॉल है, F2 में भी टॉल है, P में भी टॉल है, तो स्किप कैसे हुआ? हाउ कैन यू से कि टॉल स्किप हुआ है? P टॉल है, F1 टॉल है, F2 टॉल है, सभी में टॉल है, तो स्किप कौन हुआ? कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ? सर डार्क वाला स्किप कब हुआ? सर जब दोनों कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी F1 जनरेशन एकदम। अब ये मैंने आपको बोल के समझाया, पता नहीं क्यों आपको क्यों समझ में नहीं आया कि मैं क्या बोलना चाहता हूं। हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिया है इनको, आपने 10th स्टैंडर्ड में भी स्टडी कर लिया है, 11th में आके भी स्टडी कर लिया है मोनो हाइब्रिड क्रॉस को। अब मैं ये बोलना चाहता हूं कि अगर कोई ट्रेट जनरेशन बाय जनरेशन रिपीट होता है या स्किप होता है, अगर रिपीट होता है तो वो डोमिनेंट है, स्किप होता है वो रिसेसिव है। तो मैंने क्वेश्चन आपको ये पूछा है कि ये दोनों में से स्किप कौन होता है? आपने बोला टॉल स्किप होता है। तो कैसे टॉल स्किप होता है आप मुझे समझा सकते हैं, मुझे भी इस उम्र में जानकारी थोड़ी बहुत इंक्रीज हो जाएगी, है ना? तो यहाँ पर टोल कैसे स्किप हो रहा है? ये फर्स्ट अगर जनरेशन में बोलूं, ये सेकंड जनरेशन बोलूं, ये थर्ड जनरेशन बोलूं, तो तीनों के तीनों जनरेशन में मेरे पास टोल प्लांट तो है, तो ये स्किप कैसे कर रहा है? राइट? तो अभी स्किप हो कौन रहा है, मेरा ये क्वेश्चन है, तो आप अटक गए। तो ये दो ही है, इसमें 300 एग्जाम्पल तो है नहीं। एक टॉल है, एक ड्वार्फ है, तो स्किप ड्वार्फ ही हो रहा होगा शायद, ऐसा तो अज्यूम कर सकते हैं ना। जब मैं बात कर रहा हूं, मेरे पास दो एक्सप्रेशन है, एक टॉल है, एक ड्वार्फ है। मैं आपको बोल रहा हूं कि आप बोल रहे हो टॉल स्किप हो रहा है, मैं बोल रहा हूं नहीं टॉल स्किप नहीं हो रहा है, एंड मैं ये पूछ रहा हूं तो स्किप कौन हो रहा है, तो आप मुंझा गए कि ये क्या हो रहा है। एंड यू आर एमिंग द नीट एग्जामिनेशन, है ना? यू आर एमिंग टू score 650 plus marks in NEET examination. So think about yourself. What are you doing right now? How much you are individually, I mean, you are putting attempt towards your studies, right? So आपकी एनालिसिस को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा आपको. You are supposed to improve your analysis skill, है ना? So think about those factors. तो अब मैंने जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू कि क्या हो रहा है, कौन स्किप कर रहा है, कब, कहां पर स्किप हो रहा है? सर डार्क वाला स्किप कहां पर स्किप हो रहा है?
F1, ओके, F1 में यहां पर ड्वार्फ नहीं है, स्किप हो रहा है, फाइन। तो वही तो मैंने यहां पे आपके लिए रखा है। डोमिनेंट किसको आप बोलोगे? जो स्किप नहीं कर रहा है। एंड रिसेसिव किसको बोलोगे? जो स्किप कर रहा है एक या एक से ज्यादा जनरेशन को। तो मैंने उठाया है इस मैटर को कहां से? अपने जो स्टडी किया है वही एक्सपेरिमेंट में से इसको मैंने निकाला है, आइडेंटिफाई करके कि आप ऐसे इट इज अ हिंट टू आइडेंटिफाई। ये हिंट है आइडेंटिफिकेशन की। आई होप आई एम वेरी क्लियर विद दिस, है ना? ओके, पॉइंट नंबर 2, ऑटोजोम है या सेक्स लिंक्ड है, मींस ये 1 to 22 क्रोमोसोम के ऊपर है या 23rd क्रोमोसोम के ऊपर है, ये भी आपको डिसाइड करना होता है बाय लुकिंग इनटू पेडिग्री। अब ये थोड़ा सा चैलेंजिंग टास्क होता है यूजुअली, राइट? कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं। ओके, तो यहां पे आपको किसको टारगेट करना है, किसको कंसीडर करना है, वो पॉइंट में यहां पे दे रहा हूं आपको। हाउ वुड यू नो वेदर इट इज ऑटोसोम और नॉट? ओके, इफ males or females, not or, plus, both are affected equally, then it is usually autosomal disease, right? एंड अगर मैं सेक्स लिंक्ड की बात करूं तब यहां पर मेल्स आर मोर getting affected generally, and females rarely. दिस इज आइडेंटिफिकेशन कैरेक्टर। पेडिग्री को एनालाइज करो तो उसमें यूजुअली दोनों अगर अफेक्टेड हो रहे हैं तो यूजुअली वो ऑटोसोमल होता है। मेल्स कंपैरेटिवली ज्यादा है तो वो सेक्स लिंक्ड हो सकता है, राइट? सो ये आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर है। आपको अगर कोई अनजान पेडिग्री दे दी गई है, राइट, एग्जाम में आता ही है इस टाइप का क्वेश्चन, सो इट इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू टू recall the information, to analyze the kundali or pedigree right way or nearly to the perfectly, I mean nearly 100% perfection maybe you can not have। वहां पे आपको काफी सारी चीजों को एक साथ एप्लीकेशन में लाना पड़ता है। से फॉर एग्जाम्पल यू आर सपोज टू गो फॉर ऑल, कंपेयरिंग ऑल फॉर ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, कौन सा वाला ज्यादा मैच होता है उसको आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है। अभी आपके लिए ये सब कंफ्यूजिंग शायद लगेगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे मैं आपको समझाता जाऊंगा विथ एग्जाम्पल्स, तब आपको थोड़ा सा वो जो मैटर है अभी आप कंफ्यूज्ड हो, वो कंफ्यूजन थोड़ा थोड़ा क्लियर होता जाएगा। सो डोंट वरी, ये पहली बार आप देख रहे हो, पहली बार सीख रहे हो, इसीलिए आपके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला होता जा रहा है, लेकिन ऐसा इतना ज्यादा कंफ्यूजिंग है नहीं ये, है ना? सो डोंट वरी अबाउट दैट पार्ट। ओके, सो यहां पर जो मैंने आपके सामने रखे हैं ऑप्शंस, दो जो आपकी टेक्स्ट बुक में से उठाए हैं, तो एक जो है वो है ऑटोसोमल डोमिनेंट, एक जो है वो है ऑटोसोमल रिसेसिव। ऐसे दो एग्जाम्पल हमने देखे। तो यहां पर आप देख सकते हो अभी मेल फीमेल दोनों केस में इक्वली जिसको बोल सकते हैं अफेक्टेड है, सो दैट व्हाट वी कैन सी एज दे आर ऑटोसोमल।
अब फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है उसमें देखिए जनरेशन नंबर 1, जनरेशन नंबर 2, जनरेशन नंबर 3 तीनों के अंदर अफेक्टेड इंडिविजुअल्स है। वेदर दूसरे वाले में पेरेंटल जनरेशन में देयर इज नो अफेक्टेड इंडिविजुअल्स, राइट। ओके, अब पेडिग्री एनालिसिस को आपको जब नोटेशन डिनोट करना होता है तो जितनी जनरेशन होती है वो जनरेशन के सामने आपको जो जनरेशन का नंबर देना है वो ऑलवेज इटैलिक्स में देना होता है, रोमन, सॉरी नॉट इटैलिक। सो इट इज नंबर 1, ये जनरेशन नंबर 2 है और ये जनरेशन नंबर 3 है, ऐसे देना होता है। अब यहां पर देखिए तो ये जनरेशन 4th नहीं है, ये सेकंड जनरेशन में से ही निकला है डिसेंडेंट्स इसका। तो ये दो लाइन, ये और ये दोनों सेकंड थर्ड जनरेशन है दोनों, है ना। सो ये भी आपको केयरफुली कंसिडर करना है। तो जनरेशन नंबर 1, जनरेशन नंबर 2 एंड जनरेशन नंबर 3। अब कितने इंडिविजुअल्स है? जनरेशन नंबर 1 के अंदर आपके सामने 2 इंडिविजुअल्स है, 1 एंड 2 इंडिविजुअल्स है। वेयर एल्स सेकंड जनरेशन में आपके पास इंडिविजुअल्स है टोटल 6, 1 2 3 4 आर किड्स। ये पेरेंट के ये 4 किड्स है, राइट। इंडिविजुअल नंबर 5 एंड 6 ये दोनों शादी करके फैमिली में घुसे हैं, है ना। समझ रहे हो ना मेरी बात को? दे आर इंपोर्टेड, बाहर से आए हैं, है ना। वो फैमिली में जन्म नहीं लिया उसने, फैमिली में घुसे हैं वो, राइट। ओके, थर्ड नंबर जनरेशन 1 2 3 4 5 एंड टोटल 6 इंडिविजुअल्स हैं। सो इस हिसाब से आपको उसमें नंबर्स डिनोट करने हैं इंडिविजुअल्स के या फैमिली की जनरेशन में। तो जनरेशन नंबर 1 2 3, 1 के ये 2, 2 के ये 6, 3 के ये 6। सो दैट्स हाउ यू कैन राइट द पेडिग्री इफ यू वांट टू राइट। ओके, यहां पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, क्वीन विक्टोरिया, उसकी पेडिग्री है, राइट। एंड उसको हम आगे भी देखने वाले हैं। सो राइट नाउ वी आर स्किपिंग दोस पॉइंट्स। सो हम थोड़े एक स्टेप ऑलमोस्ट जिसको बोलते हैं कि चैप्टर एंड तरफ हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। लास्ट पॉइंट ही बचे हैं, जेनेटिकल डिसऑर्डर के बारे में हम अभी बात करेंगे। सो द डिसऑर्डर विच आर कोज्ड बाय ऑल्टरिंग ऑफ जीन, अगर जीन्स के ऑल्टरनेशन होते हैं, उसमें कोई चेंज होता है एंड जब आपको डिसऑर्डर होता है तो उसको हम बोलेंगे जेनेटिक डिसऑर्डर, राइट। सो हम लास्ट सेगमेंट ऑफ द चैप्टर में पहुंच गए हैं जेनेटिक डिसऑर्डर को। सो यहां पर जेनेटिक डिसऑर्डर को वेरी टेक्निकली आपके सामने रखा गया है, एक्सप्लेन करा गया है कि जेनेटिक डिसऑर्डर आर द डिसऑर्डर विच is happening due to altering, means change into the genes or chromosomes, either gene or chromosomes। अब क्रोमोसोम में चेंज है तो उसको क्या बोलेंगे? एब्रेशन। जीन्स में चेंज है तो क्या बोलेंगे? म्यूटेशन। जीन का म्यूटेशन होता है, क्रोमोसोम का एब्रेशन होता है, फाइन। तो अगर जीन में ऑल्टरेशन होता है, म्यूटेशन होता है एंड डिसऑर्डर होता है तो जीन सिंगल होता है जिसके 2 फैक्टर हो सकते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट 1 जीन और उसके में भी 2 फैक्टर्स
हम जिसको अभी एलील बोलते हैं, ये पूरा कॉन्सेप्ट जीन्स का जिसने रिप्रेजेंट किया है वो मेंडल है। तो जेनेटिक डिसऑर्डर में अगर वो कोई पर्टिकुलर सिंगल जीन के म्यूटेशन से होता है तो उसको हमने ऑनर कर दिया है विद द नेम ऑफ मेंडल। तो वो डिसऑर्डर को हम मेंडेलियन डिसऑर्डर बोलते हैं अभी। सो आपके सामने यहां पर मेंडेलियन डिसऑर्डर हेडिंग दिया गया है और उसके एग्जाम्पल में ये 6 नाम रखे हुए हैं। एक का नाम है हीमोफीलिया, दूसरा है कलर ब्लाइंडनेस, तीसरा है थैलेसेमिया, फोर्थ सिकल सेल एनीमिया, फिफ्थ फिनाइल कीटोन यूरिया एंड लास्ट वाला है सिस्टिक फाइब्रोसिस। तो ये 6 एग्जाम्पल यहां पर सिंगल जीन में अगर कोई म्यूटेशन होता है और सिंगल जीन में चेंज होके बनता है तो उसको मेंडेलियन डिसऑर्डर बोलते हैं और इसके 6 एग्जाम्पल आपके सामने रखे हैं। सिमिलर वे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की मैं बात करूं तो क्रोमोसोम में एब्रेशन होता है, क्रोमोसोम का नंबर चेंज होता है, साइज चेंज होती है, तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हो सकते हैं। तो यहां पर 3 टाइप के क्रोमोसोमल डिसऑर्डर को एक्सप्लेन किया गया है, डाउन्स सिंड्रोम, टर्नर्स सिंड्रोम एंड क्लाइनफेल्टर्स सिंड्रोम। ऐसे 3 यहां पर आपके सामने रखे हैं। 3 एग्जाम्पल सेट करके आपके सामने दिए गए हैं। फाइन, कोई डाउट प्रॉब्लम? वन बाय वन दोनों को हम देखेंगे। तो पहले बात आती है सबसे पहले मेंडेलियन डिसऑर्डर्स की। फाइन, सो एज आई सेड अर्लियर, मेंडेलियन डिसऑर्डर होता है वो सिंगल जीन का डिफेक्ट है। फाइन, कि जब भी कोई डिसऑर्डर विच इज कॉज्ड बाय ऑल्टरेशन और म्यूटेशन इन अ सिंगल जीन, आई टोल्ड यू अगर जीन का होता है तो उसको हम बोलेंगे म्यूटेशन, अगर क्रोमोसोम में होता है तो इसको बोलेंगे हम एब्रेशन। क्लियर? तो सिंगल जीन में अगर कोई ऑल्टरनेशन होता है, अगर उसमें कुछ फेरफार होता है, म्यूटेशन होता है, तो हमने आगे जो लिस्ट रखी थी वही यहां पर एग्जाम्पल है। हीमोफीलिया है, कलर ब्लाइंडनेस है, सिकल सेल एनीमिया है, फिनाइल कीटोन यूरिया है, थैलेसेमिया है और सिस्टिक फाइब्रोसिस है। राइट? Okay, the pattern of inheritance of this Mendelian disorder can be traced in a family by pedigree analysis. तो अगर इसको हमको ट्रेस करना हो कि अगर मेरे में कोई डिसऑर्डर है तो कहाँ से आया है, मेरे पेरेंट्स में से ही आया होगा वो तो फॉर श्योर है। तो मेरे पेरेंट्स को किसने पधराया है, कौन से फोरफादर से उसको मिला है, तो ये हम ट्रेस कर सकते हैं पूरा मैकेनिज्म। कैसे ट्रेस करते हैं तो वो तो ऑलरेडी हमने इसके पहले जो पेडिग्री का एनालिसिस हमको समझाया गया था उसमें दिया था। ये रहा, ये हमने जो पढ़ा था ना आगे कि कैसे हम उसको ट्रेस कर सकते हैं। राइट? सो मेंडेलियन डिसऑर्डर मे बी आइदर डोमिनेंट और रिसेसिव। तो अगर वो जनरेशन को स्किप नहीं करता है तो वो डोमिनेंट है, अगर जनरेशन वहां पर स्किप हो रहे हैं तो वो रिसेसिव है। तो वेदर इट इज डोमिनेंट, वेदर इट इज रिसेसिव, राइट, वो हमें पेडिग्री को समझने के बाद ही पता चलता है। तो पेडिग्री को देख के हमें जानना पड़ेगा उसको। राइट? आप लेट आए हो, कोई बात नहीं है, आगे हमने थोड़ी सी बात कर ली है। राइट? समझा देता हूं आपको, वैसे पता चल जाएगा कि मैंने क्या समझाया है। क्विकली मैं रिवाइज करवा देता हूं। पेडिग्री को हमने देखना है, हमको देखना है पेडिग्री को। अफेक्टेड इंडिविजुअल डार्क है, डार्क, ये अफेक्टेड इंडिविजुअल्स है, ये नॉर्मल है बाकी के।
ये जनरेशन नंबर 1 है अपने लिए, ये फर्स्ट जनरेशन है, पेरेंटल जनरेशन, राइट। तो ये अपनी फर्स्ट जनरेशन है, ये अपनी सेकंड जनरेशन है, राइट, और ये अपनी थर्ड जनरेशन है। तो ये थर्ड जनरेशन में देखिए, फर्स्ट जनरेशन में अफेक्टेड इंडिविजुअल है, सेकंड में भी है और थर्ड जनरेशन में भी है। तीनों के तीनों जनरेशन में वो रिपीट हो रहे हैं। कोई जनरेशन अगर स्किप नहीं होती है तो वो डोमिनेंट होगा। अगर जनरेशन स्किप हो रही है, देखिए यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन में कोई अफेक्टेड नहीं है, इन दोनों में है, तो ये होगा रिसेसिव, लिखा है, ये होगा डोमिनेंट, लिखा है ना। सो इस हिसाब से आप जान सकते हो कि आपको जो डिसऑर्डर या कैरेक्टर ट्रेट आपको जो मिला है, राइट, मैंने उसकी एनालॉजी समझाई थी, आप नहीं थे तब, तो वो भी मैं आपको रिवाइज करा देता हूं। कैपिटल टी टॉल प्लांट, स्मॉल टी ड्वार्फ प्लांट, F1 कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल प्लांट, F1 कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल प्लांट, यस, ओके। હવે F2 कैपिटल टी टॉल, कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल, स्मॉल टी ड्वार्फ। स्किप कौन हुआ, टॉल हुआ या ड्वार्फ हुआ? ड्वार्फ हुआ ना स्किप F1 में, तो वो रिसेसिव। जो स्किप नहीं हुआ, टॉल 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 तीनों में आ गया, वो डोमिनेंट। रेडी? तो अगर डोमिनेंट है या रिसेसिव है, वो तो हमने पहले भी पढ़ लिया है ऑलरेडी, मैंने उसको उठा के वहां से यहां पे अप्लाई कर दिया कि आप ये लॉजिक अप्लाई कर सकते हो। अगर वो रिपीट होता है तो वो डोमिनेंट है, अगर वो स्किप कर रहा है, यहां पे स्किप हो गया, अगर स्किप कर रहा है तो वो रिसेसिव है। सिंपल सा लॉजिक है, कोई उसमें वो नहीं है, ज्यादा आपको रॉकेट साइंस वाला ब्रेन यहां पे लगाने की जरूरत भी नहीं है। फाइन, ओके। अब यहां पे लिखा है दूसरा ऑटोजोम, ऑटोजोम सेक्स लिंक भी हो सकता है। अगर ऑटोजोम है उसका मतलब यह है कि क्रोमोसोम नंबर 1 से लेके क्रोमोसोम नंबर 22 तक वो क्या है, जीन का लोकेशन हो सकता है। बट अगर सेक्स लिंक्ड है तो वो 23rd क्रोमोसोम में दोनों, या तो एक्स वाला होगा या तो वाई वाला होगा। क्लियर? तो वो भी आपको निकालना है, आइडेंटिफाई करना है। उसका एक हिंट मैंने यहां पर समझाया था, मैं आपको समझा देता हूं कि अगर मेल एंड फीमेल दोनों में होता है, देखिए यहां पर भी दोनों में हो रहा है, यहां पर भी दोनों में हो रहा है, तो वो ऑटोजोमल होता है। मोस्टली मेल्स में होता है, रेयरली फीमेल में होता है, तो उसको हम बोलेंगे एक्स लिंक्ड, यानी कि सेक्स लिंक्ड। रेडी? अब इतना आपको याद रखना है इसके साथ। तो चलिए हम एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। तो हमने कहां पहुंचे हैं हम एक्चुअली अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी सिलेबस? तो आपका पेज नंबर 73 एंड 74, उसमें 73 में मेंडेलियन डिसऑर्डर करके एक पूरा पॉइंट है यहां पर, तो ये हमने पूरा एक्सप्लेन हो चुका है अपना। उसके बाद यहां पे तड़िए से स्टार्ट करें अगर नीचे से, है ना, तो पहला डिसऑर्डर है कलर ब्लाइंडनेस, उसके बाद यहाँ पे होगा हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, ब्ला ब्ला व्हाट्सएवर इट इज, है ना। ओके, सो फर्स्ट यहां पर जो दिया गया है उसकी बात करेंगे। द डिसीज कॉल्ड हीमोफीलिया, द डिसीज इज कॉल्ड हीमोफीलिया। हीमोफीलिया रॉयल डिसीज के नाम से भी कॉमनली जाना जाता है, द रॉयल डिसीज। रीजन की हिस्ट्री में ब्रिटिश जो हेरार्की है, मोनार्की जिसको बोलेंगे हम, राजाशाही, तो अगर आपको शायद पता हो तो ब्रिटिश में रानी का राज था, राजा का राज नहीं था, पता है ना। सिंपल लॉजिकल बात उसमें ये आती है कि यूजुअली क्या होता था कि उसकी जो एंसेस्ट्री है उसमें एक
16th सेंचुरी में रानी विक्टोरिया थी। तो रानी विक्टोरिया थी ना, उसको उसके साथ एक ये जेनेटिक डिसऑर्डर कनेक्टेड है, राइट। उसी के एग्जांपल से समझाता हूं मैं। जो लास्ट में मैंने बोला था ना कि आगे आने वाला है, तो मैं भी स्किप कर रहा हूं, तो ये रहा, आगे आ गया। सो क्वीन विक्टोरिया जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, वो हीमोफीलिया के डिफेक्टेड जो जीन होते हैं ना, डिफेक्टिव जीन, वो जीन उसके पास था और वो वहां से स्प्रेड हुआ उसकी फैमिली में, मींस उसके बच्चों में, उसके बच्चों में से गया उसके बच्चों के बच्चों में। फाइन। तो शी वॉज ए कैरियर ऑफ हीमोफीलिया डिसऑर्डर। हर फैमिली पेडिग्री शोज मेनी हीमोफिलिक डिसेंडेंट। सॉरी, ये पूरा पेडिग्री है उसका, राइट। अब हम पहले हीमोफीलिया क्या है वो जान लेते हैं, उसके बाद में ये पूरा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो हीमोफीलिया जो है एज अ डिसीज होता क्या है, राइट। तो मैं सेकंड पॉइंट पे हुई है, सेकंड नंबर के पॉइंट में, ये पॉइंट पे, इन दिस a protein which is involved into the blood clotting, ब्लड जिसकी वजह से क्लॉट होता है, ऐसा प्रोटीन, वो प्रोटीन बनाने वाला जीन अफेक्टेड हो जाता है, राइट। तो जीन इज अफेक्टेड तो प्रोटीन नहीं बनेगा, अगर प्रोटीन नहीं बनता है तो ब्लड क्लॉट नहीं होगा। तो अगर मुझे कुछ लग गया, मुझे हीमोफीलिया है, मुझे कुछ लग गया एंड ब्लीडिंग चालू हुई, बात खत्म, ब्लीडिंग बंद नहीं हो सकती है। तो जब तक मेरे पास ब्लड है तो वो निकलता ही जाएगा, निकलता ही जाएगा। सो अल्टीमेटली आई एम गोइंग टू डाई। समझ में आ रही है बात। तो अगर वो मेल में गया, राजा, रानी का बेटा अगर राजा होने वाला है, उसको ये रोग है से फॉर एग्जाम्पल, तो राजा का काम तो लड़ना है, तो कैसे चलेगा कि उसको घा ना लगे। और बचपन से लेके जब जवानी तक इज इट पॉसिबल कि आपके शरीर में एक घा भी ना हो सकता है, क्योंकि वो तो रॉयल खानदान में है, ऐसा भी हो सकता है, इतना केयर करे कि उसको कुछ होने ही ना दे। आप एक्सटर्नल इंजरी को अवॉइड कर सकते हो, इंटरनल इंजरी तो होती ही रहती है बॉडी के अंदर, जो आपको पता भी नहीं है, आपकी बॉडी में अभी हो ही रही होंगी, लेकिन आपको पता नहीं हो, वो ऑटोमेटिक हील हो जाती है। क्यों? ब्लड से फॉर एग्जांपल लीक हुआ तो डेफिनेटली वो तो कैस्केड मैकेनिज्म में क्लॉट हो जाएगा, वो ऑटोमेटिक होती रहती है हमारी बॉडी के अंदर। आप नंबर ऑफ कैपिलरीज तो देखो कितनी है, मे बी इन द क्रोर्स, तो करोड़ में से एक आधी तो फट जाती होंगी ना दिन में, तो लेकिन ऑटोमेटिक हील होके रिपेयर हो जाती है। लेकिन हीमोफीलिया में ब्लड क्लॉट ही नहीं होता है। समझ रहे हो ना मेरी बात को। तो इंटरनल इंजरी ये रही, ऊपर का डायग्राम देखो, ये ऊपर की इंजरी नहीं, ये अंदर की इंजरी है। तो इसको आप कैसे अटकाओगे? वो तो हो सकती है ना, इंटरनल इंजरी तो हो ही सकती है। सो यू कैन नॉट अवॉइड एट एनी टाइम। सो उसको जाना ही वो फिक्स हो गया, हीमोफीलिया है तो इट कैन नॉट सस्टेन द लाइफ। तो ऐसी ये डिसीज है नंबर 1। ओके, a simple cut result into non-stop bleeding as I told you earlier. Fine. अब वो जीन की बात करें हम, उसके जीन्स की, तो जीन है इट इज कंट्रोल बाय पेयर ऑफ एलील, कैपिटल एच स्मॉल एच। कैपिटल एच डोमिनेंट है, स्मॉल एच रिसेसिव है। कैपिटल एच है तो नॉर्मल इंडिविजुअल है, स्मॉल एच है तो उसको हो सकता है डिसीज। रेडी? अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये है सेक्स लिंक्ड।
यानी कि सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर है, एलोसोम के ऊपर है, ऑटोसोम के ऊपर नहीं है ये जीन। अब लकीली आपकी बुक के अंदर जितने सेक्स लिंक्ड है वो एक्स लिंक्ड ही है। वाई लिंक्ड कोई भी डिसऑर्डर यहाँ पे आपकी बुक के अंदर एज एन एग्जाम्पल नहीं दिया गया, आपको स्टडी करना ही नहीं है वाई लिंक्ड का, आपको एक्स लिंक्ड का ही स्टडी है। तो अकॉर्डिंग टू यू मीन्स टूवर्ड्स यू और आपके लिए अगर मैं बोलूं तो सेक्स लिंक इज इक्वल टू एक्स लिंक्ड, राइट। वाई लिंक्ड का कोई भी एग्जाम्पल आपके बुक के अंदर है नहीं तो आपको पूछा नहीं जाएगा। उसका मतलब ये नहीं है कि वाई लिंक्ड डिसऑर्डर नहीं है, ये है वाई लिंक्ड डिसऑर्डर। आपकी फैमिली में भी कोई होगा शायद कि जिसके बाल ऊपर एज के हिसाब से बाल्डनेस जिसको आप बोलोगे, तो बाल्डनेस इज वन ऑफ द डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर विच इज सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर। ऋतिक रोशन की 6 उंगलियां, पॉलीडक्टिलिटी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? पॉलीडक्टिलिटी। वो सेक्स लिंक्ड है और वो वाई क्रोमोसोम लिंक्ड है, राइट। सो देर आर मेनी विच आर देयर बट वो है नहीं आपके, वो टेक्स्ट बुक में से हटा दिया है उनको, राइट। सो सेक्स लिंक में आपको जो रेफरेंस याद रखना है वो एक्स लिंक का ही रखना है। तो जीन्स यहां पर है, एक्स क्रोमोसोम के ऊपर है, कैपिटल एच और स्मॉल एच। कैपिटल एच नॉर्मल है, स्मॉल एच अफेक्टेड इंडिविजुअल को प्रेजेंट करता है। सो कैपिटल एच इज नॉर्मल एलील, स्मॉल एच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हीमोफीलिया डिसऑर्डर। आई होप आई एम वेरी क्लियर। ओके, जब एक्स लिंक्ड होगा तब रिसेसिव ही होता है, एक्स लिंक कभी भी डोमिनेंट नहीं होता है। क्यों? अगर एक्स लिंक्ड है तो कभी भी डोमिनेंट हो ही नहीं सकता है, वो डिसीज कभी भी डोमिनेंट नहीं हो सकता है क्योंकि एक्स क्रोमोसोम रिसेसिव क्रोमोसोम है। आगे भी एक बार मैंने आपको समझाया था ऐसा कुछ, याद आ गया है ना? ओके, सो एक्स लिंक्ड आर ऑलवेज रिसेसिव वन, फाइन। ओके, अब ये जीनोटाइप और ये है उसका फिनोटाइप। जीनोटाइप में अगर डबल एक्स क्रोमोसोम है तो वो तो फीमेल ही होने वाली है। एक्स क्रोमोसोम के ऊपर जो एच जीन है वो कैसा है उसके ऊपर से हम बात करते हैं इसकी। तो एक्स कैपिटल एच यानी कि होमोजाइगस डोमिनेंट है। वो होमोजाइगस डोमिनेंट कैसी होती है? नॉर्मल फीमेल। अगर हिट्रोजाइगस है, देखिए एक कैपिटल एच है एक स्मॉल एच है, तो वो होती है हिट्रोजाइगस फीमेल और उसको हम बोलेंगे कैरियर। वो क्वीन विक्टोरिया वाला मैटर आया, कैरियर, राइट। तो उसके पास एक डिफेक्टिव जीन है, एक नॉर्मल जीन है, ये डोमिनेंट वाला है, ये डिफेक्टिव है, तो उसके पास है, राइट। लेकिन वो एक्सप्रेस क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज यहां पे डोमिनेंट वाला है एच कैपिटल, तो अगर ये और ये दोनों साथ में है तो इसको ही एक्सप्रेस होना है, कैपिटल एच वाले को ही। स्मॉल एच वाला एक्सप्रेस हो ही नहीं सकता है क्योंकि सामने शेर खड़ा है, तो हम बात नहीं कर सकते, सिंपल सा लॉजिक है। तो यहां पे कैपिटल एच वाला जो जीन है उसको होना है डोमिनेंट, राइट। तो वो एक्सप्रेस होता है, तो इसके पास ये है, जो ये नेक्स्ट जनरेशन में तो भेज ही सकती है ना। ये मदर जिसके पास कैपिटल एक्स स्मॉल एच है, वो हेरिडिटी में उसको नेक्स्ट जनरेशन में तो भेज ही सकती है, तो वो कैरी करती है देने के लिए, तो कैरियर बन गई वो, इसीलिए नाम दिया गया है कैरियर। I hope I am very clear with this. So she may transmit this disease to their sons. Why sons and why not daughter? क्योंकि डॉटर को अगर मिलेगा तो उसके पास दूसरा ऑप्शन है ना, तो डॉटर कैन बी सेव्ड बाय इटसेल्फ। डॉटर उसके खुद बच सकती है, उसके पास दूसरा एक्स का प्रावधान है, उसके पास है चांस दूसरा। मेल्स के पास सामने तो वाई होगा ना, एक्स तो होगा नहीं ना।
सो अगर वो स्मॉल एच वाला एक्स अगर मेल कैंडिडेट में आया तो मेल गया, उसको ये डिसीज होनी ही है। आई होप आई एम वेरी क्लियर विद दिस, राइट? ओके, अब फीमेल को कब हो सकती है हीमोफीलिया? फीमेल को कब हो सकता है? जब दोनों के दोनों एक्स उसके पास कैसे है? स्मॉल एच वाले। दोनों के दोनों स्मॉल एच वाले अगर है तो हो सकता है, बट ये पॉसिबल यूजुअली नहीं है, होता नहीं है। क्यों नहीं होता है अभी एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी। लेट मी एक्सप्लेन दिस टू फिनोमेना फर्स्ट, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों एक्स स्मॉल एच वाली फीमेल्स हीमोफीलिया के लिए नहीं होती है, राइट? ओके, अब एक्स वाई मेल दो कंडीशन बन सकती है, एक नॉर्मल और एक हीमोफिलिक। तो वो डिपेंड होगा कि उसके पास एक्स क्रोमोसोम कैसा है। नॉर्मल एक्स है मींस एक्स कैपिटल एच है, या डिफेक्टेड वन है मींस कैपिटल एक्स की जगह पर स्मॉल एच है। तो कैपिटल एच की जगह पर अगर स्मॉल एच है तो वो तो डिफेक्टेड है। अगर डिफेक्टेड है तो डेफिनेटली वो एक्सप्रेस होना है और हीमोफीलिया उसको होगा ही। तो ये हीमोफिलिक मेन एंड नॉर्मल मेन। फीमेल तीन टाइप की हो सकती है, नॉर्मल, कैरियर एंड हीमोफिलिक। बट हीमोफिलिक यूजुअली होती नहीं है, कैन नॉट सर्वाइव। क्यों नहीं सर्वाइव कर सकती है उसका रीजन अब मैं आपके सामने लेके आता हूं, है ना? ओके, से फॉर एग्जाम्पल यहां पर जो नाम लिखा है मैं बोल के समझाता हूं, दिखेगा शायद नहीं। प्रिंस एल्बर्ट है, राइट? एंड ये है क्वीन विक्टोरिया। तो अल्बर्ट उसके हस्बैंड है, ये खुद है। यहां पे आप देखोगे ना, ये यहां पर आधा कलर्ड है आधा ब्लैंक है, दिख रहा है आपको ऐसा? तो इसको हम बोलेंगे कि अगर आपको कैरियर है ऐसा इंडिकेट करना हो तो आपको ऐसे करना पड़ेगा, राइट? तो फीमेल का रिप्रेजेंटेशन क्या है? सर्कल। तो अगर आप उसको हाफ कलर करोगे, हाफ नॉर्मल करोगे, अनकलर्ड, तो उसका एक एक्स जो है वो नॉर्मल है, दूसरा एक्स अफेक्टेड है, ऐसा आप बोल सकते हो। तो ये कैरियर की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की लैंग्वेज है। आई होप आई एम वेरी क्लियर। सो देखा जाए तो यहां पर आप इजीली समझ सको ऐसा, यहां पे नॉर्मल एक्स एच कैपिटल एंड वाई है, यहां पे एक्स स्मॉल एच है एंड दूसरा एक्स कैपिटल एच है, दोनों है एक एक। रेडी? ओके, अब इसके ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बच्चे हुए हैं ओनली, है ना? सो उसमें से ये थर्ड वाले पे अब आते हैं, थर्ड वाले पर वो कैपिटल एक्स एच एंड स्मॉल एच ऐसा कॉम्बिनेशन यहां पे देखने को आपको मिला। ये जो है ये यहां पर आया है, तो ये हीमोफीलिया वाला मेल बन गया, राइट? जाता है किसमें? मेल कैंडिडेट में ही जाएगा अफेक्ट होने के लिए। यहां पर तो नॉर्मल है, एक्स कैपिटल एच एंड वाई है, तो ये तो नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है। आई होप आई एम वेरी क्लियर विद दिस, है ना? सो अब अगर आप देखो पूरी पेडिग्री में कहीं पे आपको फीमेल कैंडिडेट ऐसी मिल रही है कि जिसको हीमोफीलिया हो? अब देखिए ऊपर लिखा क्या है, इन द फीमेल हीमोफीलिया इज वेरी रेयर बिकॉज इट हैपन्स ओनली व्हेन मदर इज at least carrier,
फादर इज हीमोफिलिक। कब होती है हीमोफीलिया? तो हीमोफीलिया होने के लिए ये और ये तो नॉर्मल है, नॉर्मल एंड कैरियर है, तो क्या होगा? चलो देखते हैं। ये है फादर एक्स नॉर्मल एंड ये है मदर एक्स, एक नॉर्मल एक्स लंगड़ा वाला मींस एबनॉर्मल है ना। अब इन दोनों से जो नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस होने की पॉसिबिलिटीज है वो हम पहले ये एक्स और ये एक्स की बात करते हैं। एक्स कैपिटल एच, दूसरा एक्स कैपिटल एच, ये पॉसिबिलिटी नंबर 1 है। एक्स कैपिटल एच कैपिटल एच एंड दूसरा एक्स स्मॉल एच, ये कंडीशन नंबर 2 है, पॉसिबिलिटी नंबर 2 है। अब आती है बारी ये वाई क्रोमोसोम की, तो थर्ड ये एक्स कैपिटल एच, ये वाई यहां से आ गया, थर्ड पॉसिबिलिटी। फोर्थ पॉसिबिलिटी में आता है वाई एंड एक्स स्मॉल एच, सो एक्स स्मॉल एच एंड वाई, ये पॉसिबिलिटी फोर्थ ने। 4 टाइप की पॉसिबिलिटीज यहां पे है। अगर ऐसा है तो ये एक्स एक्स हो गया, तो ये होगी फीमेल। कैसी फीमेल है ये? नॉर्मल फीमेल है, नॉर्मल यानी कि अनअफेक्टेड। रेडी? एक्स एक्स है तो हो गई फीमेल, एक कैपिटल है मींस एक स्मॉल है, हिट्रोजाइगस है तो ये है कैरियर। डाउट? ओके। एक्स वाई है तो ये है मेल, मेल में कैपिटल एच है तो ये है नॉर्मल यानी कि अनअफेक्टेड। एक्स वाई लास्ट में मेल, एक्स स्मॉल है तो वो अफेक्टेड है मींस हीमोफिलिक है। यहां पर किसी को कोई डाउट है? मैं यहां पर फादर की कंडीशन के सामने मदर की कंडीशन को बदलाता हूं, कंडीशन बदल देते हैं हम। ये अपनी कंडीशन नंबर 1 थी, अब हम कंडीशन नंबर 2 के पास जाते हैं कि यहां पर भी स्मॉल एच है मींस फादर जो है अफेक्टेड है, हीमोफिलिक है, राइट, एंड मदर कैरियर है। तो अब वहां पर अगर आप देखोगे तो एक्स एक्स, देखिए कंडीशन नंबर 1 एक्स कैपिटल एच एक्स स्मॉल एच, ये फर्स्ट वाला ऑप्शन हो गया। यस और नो? फिनोटाइप कैसा आएगा? कैरियर फीमेल, राइट। ओके, सेकंड ऑप्शन के पास मैं जाता हूं, एक्स स्मॉल एच एक्स स्मॉल एच, एक्स है डबल तो वो होगी फीमेल, लेकिन यहां पर दोनों स्मॉल है तो वो होगी हीमोफिलिक। ये फीमेल भी हीमोफिलिक है। थर्ड पॉसिबिलिटी नंबर 3, वाई एक्स नॉर्मल है तो एक्स वाई ये होगा नॉर्मल मेल, एंड फोर्थ पॉसिबिलिटी नंबर लास्ट, वाई एंड एक्स लंगड़ा वाला, राइट, अफेक्टेड वाला, स्मॉल एच वाई, तो ये होगा हीमोफिलिक मेल। तो वो जो स्टेटमेंट था आगे कि ये रेयर कंडीशन है, ये तभी हो सकती है जब फादर हीमोफिलिक हो और मदर एटलीस्ट कैरियर हो, तो ही
फीमेल हीमोफिलिक हो, ऐसा हो सकता है। तो वो जो स्टेटमेंट था मैंने यहां पर आपके सामने एक्सप्लेन किया है। तो ये हो गई अपनी कंडीशन नंबर 2, जो ये है, ये कंडीशन नंबर 2 है कि जब फादर हीमोफिलिक है, मदर कैरियर है, तब आपके सामने ये पॉसिबिलिटी बनती है कि उसकी बच्ची मींस फीमेल चाइल्ड भी हीमोफिलिक हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकता है। अगर ये है भी, राइट, यूजुअली होता नहीं है। क्यों पता है? ये बापूजी जो होते हैं ना, ये बापूजी, ये तो हीमोफिलिक होते हैं ना। हीमोफिलिक होने के बावजूद जन्म लेके वो जवान हो, शादी करे, बच्चा हो, तब तक वो जिंदा रहे, ऐसी पॉसिबिलिटी आज तक देखने को नहीं मिली है। आप समझ रहे हो ना? तो जब हीमोफिलिया की बात आता है ना, तो ये कंडीशन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि ऐसा बापूजी जीवता रहता ही नहीं है। वो कोई ना कोई लाइफ के एक स्टेज के ऊपर उसको मरना ही है, लग जाएगा इंटरनल इंजरी या एक्सटर्नल इंजरी, उसको कहीं पे तो जाना ही है, वो जिंदा नहीं रहते हैं, मतलब, है ना। इसीलिए आपको पूरी पेडिग्री के अंदर कहीं पर भी हीमोफिलिक फीमेल देखने को नहीं मिली थी। ये उसका साइंटिफिक मैंने एक्सप्लेनेशन आपको दिया। फाइन, ओके। सो इन फीमेल्स हीमोफिलिया इज रेयर। देखिए यहां पर लिखा है कि happens only when mother is at least carrier, father is hemophilic, but काउंस में लिखा है, देखिए, into the bracket, unavailable into the later stage of life। तो ऐसा हो ही नहीं सकता है, जनरल केस में ऐसा हो नहीं सकता है कि हीमोफिलिया वाली फीमेल आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि ऐसा कोई मेल होता ही नहीं है। जो ये मेल है, देखिए, राइट, तो उसके बच्चे में इसको स्प्रेड करा गया है, तो ये रेयर कंडीशन के ऊपर ये जिंदा है, रेयर कंडीशन में है ये। बट सामने उसकी जो लेडी होगी, रानी, वो नॉर्मल होगी, अफेक्टेड नहीं होगी, वरना यहाँ पे ये जो सिंगल है ना, वो डबल पूरा हो जाता। समझ रहे हो ना? सो ये एक मैटर भी है। तो रेयर केस यहां पर देखने को एक टाइम मिला है पूरे पेडिग्री में, राइट। एक ऐसा अफेक्टेड इंडिविजुअल है, मेल कैंडिडेट, जिसकी जनरेशन में ये जो है वो हुई भी है, नॉर्मल भी हुई है, देखिए, है ना। सो आई होप आई एम वेरी क्लियर टिल नाउ। ओके, अगर आपको कोई कंफ्यूजन होता है, पूछना होता हो अगर कुछ, तो आप पूछ सकते हो कभी भी, आपको पता ही है, राइट। ओके, मेंडेलियन डिसऑर्डर नंबर 2, जो अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक नंबर 1, according to my sequence it is second, and that is color blindness. Fine. So when we talk about the color blindness, color blind means you cannot, if you are affected, you cannot recognize certain types of colors, right? So it is sex linked again, means X linked recessive disorder है। X linked है तो recessive ही होगा, as I told earlier, right? ओके, यहां पे होता क्या है, अगर ऐसा डिसऑर्डर है तो यू कैन नॉट रिकॉग्नाइज आइदर रेड और ग्रीन और समटाइम्स बोथ टाइप ऑफ कलर्स, राइट। से फॉर एग्जांपल यहां पर एक टेस्ट दिया गया है, राइट, इस राउंड के अंदर एक नंबर छिपा है, वो आपको तभी दिखेगा जब आप नॉर्मल हो, कलर ब्लाइंड नहीं हो, राइट। जेनिफ, कौन सा नंबर दिख रहा है? 74। हाश, यू आर नॉट कलर ब्लाइंड, कॉन्ग्रेचुलेशंस, है ना। भुज वाले दोनों को दिख रहा है। बाय द वे 74 नहीं है, दूसरा है। अब दिख रहा है?
सर 74 ही है सर। पक्का? Okay, fine. So what you find is the 74 number there. If you find it, you are normal and not the color blind. तो आपको कोई जेनेटिक डिसऑर्डर ऐसा नहीं है। यहाँ पे टेस्ट नंबर 2 भी दिया गया है। अगर आप कलर ब्लाइंड हो तो आपको इस दोनों में अलग अलग कलर देखने को मिलेंगे। अगर आपका विजन नॉर्मल है तो दोनों में आपको एक ही कलर मिलेगा। तो एक दिख रहा है या दो दिख रहा है? दो। तो आप कलर ब्लाइंड हो? नहीं, अगर कलर ब्लाइंड हो तो एक ही दिखेगा, एंड अगर नॉर्मल है तो आपको दो देखने को मिलेगा, है ना। सो आप नॉर्मल हो, चिंता मत करिएगा, है ना। ऊपर आपको डार्क कलर मिलेगा, नीचे आपको लाइट कलर मिलेगा। अगर आपको ऐसी फ्रीक्वेंसी मिलती है, दैट्स हाउ यू आर नॉर्मल। रेडी, है ना? ओके, फाइन। सो अब ऐसा क्यों होता है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? हमारी बॉडी का एक जो आई साइट होता है, उसके बारे में शायद 10th स्टैंडर्ड में आपको आ गया होगा। हाइपरमेट्रोम समथिंग, हाइपर क्या होता था? दो डिसऑर्डर थे। यस, हाइपर मायोपिया ना। अच्छा, ओके। सो जब आईज के बारे में एक्सप्लेन करा गया था तो आगे वो प्यूपिल होता है, उसके पीछे लेंस होता है, उसके पीछे लास्ट में जो कॉर्निया होता है, राइट। एंड जो रिसीव करता है सनलाइट को, या तो कोई भी लाइट जो आती है, वहां पर जो सेंसिटिव सरफेस होती है उसमें दो टाइप के सेल्स होते हैं। डू रिमेंबर, राइट। एक का नाम है कोन्स टाइप के सेल, कोन्स। दूसरे का नाम है रोड्स। कोन्स जो होते हैं वो दिन में देखने का काम करते हैं। रोड्स जो होते हैं वो राइट में, यानी कि लो इंटेंसिटी वाली सनलाइट होती है, उसमें देखने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। उसमें कलर नहीं दिखता है आपको। रात को आप अगर देखोगे आंख खोल के तो कलर कुछ नहीं दिखेगा, कुछ ना कुछ है ऐसा दिखेगा, कलर नहीं दिखेगा। करेक्ट और नॉट? तो कोन्स जो है उसकी आइडेंटिफिकेशन कैरेक्टर है कलर को विजिबल करने की। बेसिकली 3 टाइप के कोन्स होते हैं। एक ऐसा जो ग्रीन कलर को आइडेंटिफाई कर सके, एक ऐसा जो रेड कलर को आइडेंटिफाई कर सके, और तीसरा ऐसा जो ब्लू कलर को आइडेंटिफाई कर सके। ये 3 बेसिक कलर्स है, आपको पता ही होगा, ड्राइंग में आया होगा शायद स्टैंडर्ड 5 में, है ना। बेसिक कलर वो राउंड राउंड होता है 3, और बीच में बनता है 0, अलग अलग शेड करता है ना। ये ऐसा कुछ हम सीखे होंगे। तो 3 बेसिक कलर जो होंगे वो है ग्रीन, रेड एंड ब्लू। तीनों के लिए हमारे बॉडी के जो सरफेस है, सेंसिटिव सरफेस रिसीव करने वाली, उसमें 3 टाइप के कोन्स होते हैं। अब रेड कोन एंड ग्रीन कोन के जो सेंसिटिव प्रोटीन्स होते हैं जो आइडेंटिफाई करते हैं, वो प्रोटीन को प्रोड्यूस करने वाला जीन डिफेक्टिव हो जाता है। मींस दे कैन नॉट रिकॉग्नाइज नाउ वेदर द सब्सटेंस, जो लाइट उस सब्सटेंस पे गिर के आपकी आंख के अंदर गई है, वो सब्सटेंस का कलर रेड है या ग्रीन है वो आइडेंटिफाई ही नहीं हो पाता है हमसे, क्योंकि जेनेटिकली हमारे पास वो मैकेनिज्म ही नहीं है जो उस कलर को आइडेंटिफाई कर सके। तो दैट इज हाउ द पर्सन हु हैज दैट डिसऑर्डर, आई मीन, तो वो रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता है कि वो कलर क्या है। कलर का मे बी शेडिंग में डिफरेंस हो, अपने को तो है नहीं तो पता नहीं है क्या है, लेकिन जिसको है उसको पता नहीं होता है कि ये कौन सा कलर है। शेडिंग मींस डिफरेंस हो सकता है, अब क्या है वो हम कैसे समझाए जब हमें पता नहीं है क्या है ये। फाइन। सो हम जो देख पाते हैं वो देख नहीं पाते हैं। इन शॉर्ट, कलर अलग टाइप का उसको देखने को मिलेगा शायद। ओके, इट इज ड्यू टू द म्यूटेशन ऑफ सम जीन्स ऑफ एक्स क्रोमोसोम। अब अकरेंस, तो मेल्स के अंदर वो 8% पॉपुलेशन में है, फीमेल में ओनली
0.4% मीन्स 1000 में 4 फीमेल्स ऐसी होती है जिसको ये रोग है, और 100 में से 8 अपन पुरुष लोग तो बेचारे फंस ही गए इसमें, है ना। तो है पॉपुलेशन में, तो वैसे भी हम बदनाम है इस बारे में कि कलर में भान नहीं पड़ती है। ऐसा अगर भाई बहन भी आप फैमिली में हो ना, तो वो कॉन्फ्लिक्ट होता ही है। वो बोलेगी क्या कलर और आप समझोगे क्या कलर, तो वो कॉन्फ्लिक्ट तो पुराना है अपने लिए, नया नहीं है ना। तो यूजुअली मान्यता ऐसी है ही कि पुरुष जाति को कलर से थोड़ा इतना ज्यादा लगाव या आइडेंटिफिकेशन कैरेक्टरिस्टिक नहीं होती है जितनी फीमेल्स को होती है। सो ये एक अपने जेंडर के साथ जुड़ा हुआ फैक्ट है। बट यहाँ पे तो क्या कंप्लीट डिसेबिलिटी है, वो आड़स है, ये डिसेबिलिटी है, दोनों में फर्क है। वी डोंट लाइक टू वी आर नॉट गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दी कलर कॉम्बिनेशन एंड दीज। अब क्या है, जो है यार कलर का कपड़ा दे दो हम पहन लेंगे, वी हैव दैट काइंड ऑफ मेंटालिटी। एंड गर्ल्स अगर तैयार होती है तो आप देख सकते हो, घर में मम्मी तैयार होते हैं तब, बहन तैयार होती है तब, भाभी तैयार होती है तब, ये पहनेंगे, बाद में बोलेंगे ये अच्छा लगता है, ऐसा करके अच्छा लगता है, हम बोलेंगे अरे ब्यूटीफुल, अरे यार नहीं अच्छा लगता है, बाद में जाके चेंज करके आएंगी वापस। So they have little more tendency. We do not have that tendency towards the color selection or combinations. So that is gender discrimination, right? और discrimination भी आप बोल सकते हो। फाइन, चलिए कलर ब्लाइंडनेस में ही आगे बढ़ते हैं। जो फैक्ट्स यहाँ पर रिप्रेजेंट हुए हैं आपके सामने, लेट अस डिस्कस देम। कि नॉर्मल एलील जो है उसका वो कैपिटल सी है, राइट। अफेक्टेड जो इंडिविजुअल प्रोड्यूस करता है, राइट, रिसेसिव एलील, वो स्मॉल सी है। स्मॉल सी कलर ब्लाइंडनेस लाता है, कैपिटल सी नॉर्मल है। अंडरस्टूड। अब XH एंड X स्मॉल h, H को हमने रिप्लेस किया है C के साथ, सिंपल है ना। सो X कैपिटल C, होमोजाइगस डोमिनेंट, X कैपिटल C, X स्मॉल c, कैरियर फीमेल हेटेरोजाइगस, X स्मॉल c, कलर ब्लाइंड लेडी। क्लियर। अब Y क्रोमोसोम की बात करें, Y क्रोमोसोम के साथ X विथ कैपिटल C नॉर्मल मेल, Y के साथ X विथ स्मॉल c कलर ब्लाइंड इंडिविजुअल मेल। अंडरस्टूड। ओके। अब दो कंडीशन यहां पे दी गई है, कंडीशन नंबर 1 एंड कंडीशन नंबर 2, जो हम एक्सप्लेन करेंगे कि क्या है एक्चुअली वो। द सन ऑफ हेटेरोजाइगस वुमन, हेटेरोजाइगस का मतलब क्या होगा, कैरियर, कैरिंग X कैपिटल C एंड X स्मॉल c, हैज 50% चांस ऑफ बीइंग कलर ब्लाइंड। अब इसको करके देखना पड़ेगा कि ये क्या बोलना चाह रहे हैं। ओके। नॉर्मल मेल X कैपिटल C Y, कैरियर वुमन X स्मॉल c X कैपिटल C, राइट, ये कैरियर वुमन हो गई। अब पॉसिबिलिटी नंबर 1 ये X वाले की ले लीजिए, X कैपिटल C X स्मॉल c, राइट। दूसरा X कैपिटल C X कैपिटल C, राइट। तो ये हो गया लेडीज लोगों का कंपार्टमेंट। अगर आने वाला चाइल्ड गर्ल चाइल्ड है तो आइदर इट वुड बी कैरियर or it would be normal. There is no color blindness appears into female offspring. I hope I am very clear. Okay. अब बात करते हैं Y क्रोमोसोम की। मेल चाइल्ड अगर होता है तो X स्मॉल c इधर आया एंड यहां से Y क्रोमोसोम आया, तो ये होगा कलर ब्लाइंडनेस।
कलर ब्लाइंड मेल, और यहां से Y आया, यहां से नॉर्मल क्रोमोसोम आया, X कैपिटल CNY, ये होगा नॉर्मल मेल। अब स्टेटमेंट क्या दिया गया था कि अगर कैरियर लेडी है, हेटेरोजाइगस स्टेट में है, तो देयर इज अ 50% चांस कि उसका बेटा जो है वो कलर ब्लाइंड हो सकता है। समझ में आ गई बात पूरी, है ना? यहां पे दिया नहीं गया था कि फादर नॉर्मल है या नहीं है। अगर नहीं दिया है तो वो नॉर्मल ही है। अगर वो अफेक्टेड होता तो वहां पे लिखा गया होता कि फादर भी कलर ब्लाइंड है और मदर ये है करके, लेकिन ऐसा लिखा नहीं गया था, तो आपको अज्यूम क्या करना होगा, उसका फादर नॉर्मल है। रेडी? अब नॉर्मल नहीं है। ऑल राइट, सेकंड केस की बात करते हैं हम। अ डॉटर will be color blind only when her mother is at least a carrier plus father is color blind। देखिए मैंने बोला था ना, लिखा हुआ होगा अगर अफेक्टेड होगा तो उसको भी हम देखते हैं, राइट? उसको भी हम देखते हैं कि वो क्या बोलने वाले हैं या तो क्या बोलना चाहते हैं। चलो, कलर ब्लाइंड फादर, right? So X small c and Y, and carrier mother. X capital C, X small c, कैरियर मदर है। तो चार पॉसिबिलिटी की बात करें पहले, X X, तो X कैपिटल C आया एक बाजू से स्मॉल c आया। सो ऑप्शन नंबर 1, कैरियर वुमन, फीमेल, दैट विल बी मोर बेटर। कैरियर फीमेल चाइल्ड है, राइट? दूसरी पॉसिबिलिटी है XC, ये XC, राइट? सो दैट इज कलर ब्लाइंड फीमेल। तो दैट इज योर पॉसिबिलिटी। जो अब आपने आगे स्टेटमेंट पढ़ा कि डॉटर विल बी कलर ब्लाइंड ओनली, राइट? डॉटर विल बी कलर ब्लाइंड ओनली व्हेन father is color blind and mother is carrier, right? ओके, सो यहां पर जो सेकंड स्टेटमेंट था उसको मैंने जस्टिफाई करा। फीमेल में अगर ये हो गई, उसकी साइड जो थी नॉर्मल वही आएगी आपकी, X कैपिटल CY एंड X स्मॉल CY। एक पॉसिबिलिटी होगी कलर ब्लाइंड की, एक होगी नॉर्मल मेल की। देखिए ये रहा X स्मॉल c एंड X कैपिटल, सॉरी यहां पे तो ये Y आएगा, सॉरी ये Y यहां से आ गया, यहां से आ गया X कैपिटल C, तो ये नॉर्मल मेल है। यहां से आ गया X स्मॉल c और Y, देन इट इज कलर ब्लाइंड मेल चाइल्ड। तो ये तो सिमिलर है जो हमने इसके पहले के एग्जाम्पल पे देखा था, सेम टू सेम, नो चेंज एट ऑल। चलिए, इसमें डाउट कहीं पर पक्का? I'll see you tomorrow and we'll talk about the sickle cell anemia.